السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں ایک طالب علم کو مذہب کی آڑ میں توہین رسالت کا الزام لگا کر وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ مشال خان عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں پڑھتا تھا، جسے 13 اپریل 2017 کو یونیورسٹی کے احاطے میں آن لائن غصہ خانہ مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں مشتعل ہجوم نے قتل کر دیا تھا۔ تحقیقات کے بعد انسپکٹر جنرل پولیس نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ملا جس کے تحت مشال، عبداللہ یا زبیر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکے۔ مشال کے دوست عبداللہ نے پولیس کو تحریری طور پر بتایا کہ مشال اور عبداللہ دونوں دیندار مسلمان تھے، لیکن وہ یونیورسٹی کی بد انتظامی کی بھرپور مذمت کر رہے تھے اور اس سے قبل اس کے خلاف مظاہروں کی قیادت بھی کر چکے تھے۔ خان کی موت کے بعد کم از کم 61 مشتبہ افراد کی شناخت کی گئی۔ 7 فروری 2018 کو 61 مشتبہ افراد میں سے 57 کو گرفتار کیا گیا اور سزا سنائی گئی۔ ایک مجرم کو سزائے موت، 5 کو عمر قید اور 25 دیگر مجرموں کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس میں 26 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ 4 افراد ابھی تک فرار تھے، جنہوں نے بعد میں جون 2018 میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں 21 مارچ 2019 کو مشال خان کیس میں مزید 2 مجرموں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی۔ مشال خان کے والد نے مارچ 2019 کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ خان نے انسٹی ٹیوٹ آف کمپیوٹر اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں اسکالرشپ کی بنا پر کالج مکمل کیا اور اچھے نمبر حاصل کیے۔ اس کے بعد اس نے روس کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اسکالرشپ حاصل کی، جہاں اس نے 1 سال تک انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ خاندان کے محدود مالی وسائل کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے شعبہ صحافت میں داخلہ لیا اور وہ ماس میڈیا اور جرنلزم میں ماسٹر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اپنے سول سروسز کے امتحانات کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ دوستوں، مشال کے والد نے ڈان نیوز کو بتایا کہ مشال اپنی پڑھائی کے لیے وقف تھے اور وہ دن میں 15 گھنٹے پڑھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تعلیم مکمل زندگی کے لیے ضروری ہے اور انہوں نے اپنے بھائی اور بہنوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ مشال کے والد نے مزید کہا کہ مشال ایک امن پسند شخص تھے اور اس نے پشتو میں شاعری لکھی تھی۔ قتل کے وقت خان کا ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کے استاد نے بتایا کہ مشال ایک انسان دوست شخصیت کے مالک تھے اور وہ سوشلزم اور تصوف میں تھے۔ مارچ 2017 میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے غصہ خانہ مواد کے خلاف کریک ڈاؤن کی حمایت کی اور توہین رسالت کو ناقابل معافی جرم قرار دیا۔ اپنی موت سے قبل مشال خان نے عبدالولی خان یونیورسٹی پر تنقید کی تھی، لیکن ان کے کسی بھی تبصرے میں مذہب کا ذکر نہیں تھا اور نہ ہی توہین مذہب کا ذکر تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وائس چانسلر نے کبھی یونیورسٹی میں شرکت نہیں کی اور طلبہ اس غیر یقینی صورتحال میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تھے کہ وہ ڈگریاں حاصل کریں گے یا نہیں جس کے لیے وہ زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے اساتذہ پر تنقید کی، بیوروکریسی پر الزام لگایا اور کہا کہ ایک فیکلٹی ممبر متعدد ذمہ داریوں کا انچارج ہے۔ یونیورسٹی کی جانب سے بقایا جات جمع کرنے کے طریقے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اپریل 2017 کو اسسٹنٹ رجسٹرار نے آن لائن بورڈ پر ایک باضابطہ نوٹس شائع کیا، جس میں لکھا تھا کہ 3 طالب علم غصہ خانہ سرگرمیوں کے لیے زیر تفتیش ہیں اور انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ مجھے مطلع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ شعبہ صحافت کے طلبہ جناب عبداللہ، مسٹر مشال اور مسٹر زبیر کی طرف سے کی جانے والی غصہ خانہ سرگرمیوں کے معاملے کی تحقیقات کے لیے درج ذیل انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مزید برآں مذکورہ طلبہ کو یہاں سے زنگ آلود کر دیا گیا ہے اور اگلے احکامات تک یونیورسٹی کے احاطے میں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوستوں، اس کے بعد طلبہ کا ایک بڑا گروپ ایک ہجوم کی شکل اختیار کر گیا، جس نے ان طلبہ پر فیس بک پیج چلانے کا الزام لگایا جہاں مشال مبینہ طور پر غصہ خانہ مواد شائع کر رہے تھے۔ مشال کو عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے احاطے میں قتل کیا گیا، جہاں وہ ماس کمیونیکیشن کا طالب علم تھا۔ خان کی موت کو موبائل فون کے ذریعے فلمایا گیا اور اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا۔ جب خان کو قتل کیا گیا تو یونیورسٹی کے احاطے میں کم از کم 25 پولیس اہلکار موجود تھے۔ وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا جب اسے طالب علموں کے ایک گروپ نے برہنہ کیا اور شدید مارا پیٹا اور پھر گولی مار دی۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ خان فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کے جسم پر شدید تشدد کے نشانات تھے
और वो हिल भी नहीं रहा था। हुजूम को इसके बेजान जिस्म को लात मारते और लकड़ी के तख्तों से पीटते हुए देखा गया। इसे इमारत की दूसरी मंजिल से भी फेंका गया था। बाद में कई और वीडियो सामने आई जिनमें इसे जिंदा और हुजूम ने इस पर बेरहमी से हमला करते हुए दिखाया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि हुजूम खान की मौत के बाद इनकी लाश को जलाना चाहता था। ये इतला भी मिली कि तंजीम के कुछ रहनुमा इस हुजूम का हिस्सा थे जिसने खान पर हमला किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि सैकड़ों लोग मुलविस थे और खान को करीब से गोली मारने के बाद बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसे लाठियों, ईंटों और हाथों से मारा गया। जय वकुआ पर मौजूद एक ऐनी शाहिद ने बताया कि खान पर हमला इसलिए किया गया कि वो फेसबुक पर अहमदी अकीदे की तशहीर कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी का एक मुंतजिम और यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीम के कई रहनुमा इस हमले में मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के एक नामालूम एहलकार ने कहा कि खान को दूसरे तलबा इनके लिबरल और सेकुलर ख्यालात की वजह से नापसंद करते थे। जय वकुआ पर कम अज कम 20 पुलिस अफसरान मौजूद थे, लेकिन वो सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम रहे। यूनिवर्सिटी कैंपस को इनकी मौत के बाद बंद कर दिया गया था और तशद्दुद को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए हॉस्टल को खाली करा दिया गया था। दोस्तों, अगले दिन 14 अप्रैल को मशाल खान के जनाजे की क़यादत इनके वालिद, जो कि एक मकामी शायर थे, उन्होंने की। ज़्यादातर पड़ोसी जनाजे से दूर रहे क्योंकि किसी मुकामी शख्स ने इसमें शिरकत करने वाले एक शख्स को धमकी दी थी और लोगों को इस बात का डर था कि किसी और हजूम की तरफ से हमला किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कुछ बुजुर्गों ने शमूलियत इख्तियार की। पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया गया और चंद दर्जन लोग आखिरकार जनाजे में शामिल हुए। अगले दिनों में जैसे ही मालूमात और कौमी हिमायत सामने आई, पड़ोसियों ने मशाल की हिफाजत न करने और जनाजे के दिन खान की मजीद हिमायत न करने पर बहुत अफसोस का इजहार किया। दोस्तों, मशाल खान की मौत के बाद कम अज कम 61 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मशाल खान ने कोई तौहीन आमेज कार्रवाई नहीं की थी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके तहत मशाल, अब्दुल्ला या जुबैर के खिलाफ तहकीकात या कानूनी कार्रवाई की जा सके। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने अब्दुल्ला को मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन के दफ्तर में तलब किया। अब्दुल्ला के मुताबिक उन्होंने मशाल पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने के लिए दबाव डाला, लेकिन अब्दुल्ला के इनकार करने पर इंतजामिया ने ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी किया। फिर अब्दुल्ला को मारपीट और मशाल को लिंचिंग की सजा देने के लिए गए। दोस्तों, पुलिस की तरफ से पकड़े गए एक मरकजी मुलजिम वजहतुल्ला की गवाही के मुताबिक 15 से 20 अफराद चेयरमैन के दफ्तर में 3 तलबा के मुतनाज़ा ख्यालात पर गुफ्तगू कर रहे थे। दोस्तों, इस मीटिंग में लेक्चरर ज़ियाउल्लाह हमदर्द और पीर असफंदियार, क्लर्क अनीस, सईद और इदरीस और सुपरिटेंडेंट अरशद मौजूद थे और इन्हें इस मामले पर तलब किया गया। क्लास के नुमाइंदे मुदस्सिर बशीर ने इनसे मुबैना तौहीन रिसालत का गवाह बनने को कहा, जबकि क्लर्क इदरीस ने यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट होने की अपनी मुखालफत दोहराई। इंक्वायरी कमेटी बनाने की तजवीज़ की क्लर्क इदरीस और क्लास लीडर बशीर ने मुखालफत की, जबकि सिक्योरिटी इंचार्ज बिलाल बख्श ने इस मामले को जल्द हल करने की अपनी मर्जी का ऐलान किया और कभी कभार तालिबे इल्म को कत्ल करने की अपनी मर्जी का इजहार किया। इस ग्रुप ने मशाल के हॉस्टल की तरफ पेशकदमी की, मुख्तलिफ साथियों को शामिल होने का कहा और इस मुहिम को एक मुश्तिल हजूम में बदल दिया गया। एक सुप्रीडेंट और ऑफिस के असिस्टेंट को जुडिशल रिमांड पर कैद कर दिया गया। कुछ मुलजिमान को 21 अप्रैल को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर ऑपरेटर बिलाल बख्श पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने नारे लगाने और खान के गिर्द हुजूम को इकट्ठा करने में मदद की और इन्हें कत्ल करने के लिए उकसाया। 2 दीगर मुश्तबा अफराद को एटीसी के हवाले कर दिया गया। 25 अप्रैल को 2 दीगर मुश्तबा अफराद को एटीसी के हवाले किया गया। ये इत्तला भी दी गई कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने 13 अप्रैल 2017 को एक नोटिफिकेशन के जरिए खान को जंग आलूद कर दिया और मुबैना तौहीनों में सरगर्मी के लिए खान से तफ्तीश करने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी के एक प्रोविस्ट ने बताया कि ये नोटिफिकेशन खान की मौत के बाद जारी किया गया था। दोस्तों, जेआईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तश्कील दी गई 13 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 3 जून 2017 को अपनी हतमी रिपोर्ट दी थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मशाल को तौहीन मजहब के तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया और इस लिंचिंग को तलबा के इरादे और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के बाद अनासर की तरफ से एक मनसूबा बंद कत्ल करार दिया गया। इस रिपोर्ट में मशाल के 2 दोस्तों अब्दुल्ला और जुबैर को भी तौहीन मजहब से पाक कर दिया गया, जबकि इस वाक़े पर मर्दान पुलिस के रद्द अमल की अफादियत पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक लिंचिंग के 2 अहम अनासिर पश्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर साबिर और यूनिवर्सिटी की मुलाजिम यूनियन के सदर अजमल खान थे। अजमल ने एतराफ़ किया कि लिंचिंग से 1 माह कबल साबिर यूनिवर्सिटी के एक मुलाजिम असद के साथ इसके दफ्तर आया
और इसे बताया कि इन्हें मशाल से छुटकारा हासिल करना होगा क्योंकि वो पार्टी के लिए खतरा था। और इसके बाद इन तीनों ने मशाल के कत्ल का मंसूबा बनाया। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मशाल के लिंचिंग की सबसे बड़ी वजह यूनिवर्सिटी की इंतजामिया पर इनकी मुसलसल तनकीद थी। दोस्तों, अपने कत्ल से एक माह कबल इसने की इलाकाई न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें इसने इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियां जारी हैं और यूनिवर्सिटी में तालबात का भी इस्तेहसाल किया जाता है। मजीद ये भी पता चला कि यूनिवर्सिटी में इंतजामी मसाइल संगीन थे, जहां सियासी वाबस्तगी की वजह से आला ओहदों पर मुजरिमाना पस मंज़र के लोग भरे हुए थे। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई कि नाअहली पर रजिस्ट्रार शेर आलम, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पीर असफंद यार, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अनायतुल्लाह अफरीदी, प्रोविस्ट फयाज अली शाह, चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर इदरीस, डायरेक्टर स्पोर्ट्स प्रोफेसर फारूक और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुमायूं के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की गई। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और इस जुर्म में मुलविस तलबा के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ की गई। 7 फरवरी 2018 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुलजिम इमरान अली को सजाए मौत सुनाई। इमरान अली ने एतराफ़ किया था कि इसने मशाल खान को गोली मारी थी। 5 दीगर मुजरिमों बिलाल बख्श, फजल राजिक, मुजीबुल्लाह इशफाक खान और मुदस्सिर बशीर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 25 दीगर मुजरिमों को 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 4 दीगर मुलजिमान फरार थे जिन्होंने बाद जून 2018 में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इनका ट्रायल 21 मार्च 2019 को हुआ। मशाल खान केस में आरिफ खान और असद खान नामी 2 मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि साबिर मायार और इजहारुल्लाह नामी 2 दीगर अफराद को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। मशाल खान के वालिद ने इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया, ताहम उन्होंने दावा किया कि वो 2 मुलजिमान की बरीयत को चैलेंज करेंगे। दोस्तों, खान के कत्ल के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में खान के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे किए गए। एक बड़ी तादाद ने इलाके में मातमी जुलूस में शिरकत की। दोस्तों, बहुत से तलबा और नौजवानों ने मुल्क के कई शहरों में इस वहशियाना कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर होने वाले इन एहतजाजी मुजाहरों और दुनिया भर में यकजहती की मुहिम ने कातिलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी रियासत पर दबाव डालने का मुतालबा किया। इन मुजाहिरों की वजह से बहुत से मजहबी स्कॉलर्स को खान को शहीद करार देना पड़ा, जो इस कत्ल पर अवामी गमो गुस्से की शिद्दत को जाहिर करता है। मशाल खान की हिलाकत के 40वें रोज इनके गांव में एक जलसा आम हुआ, जिसमें तलबा और सियासी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मशाल के कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। इस इजलास में कायदे-अदब यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, पिशावर यूनिवर्सिटी और मालाकान यूनिवर्सिटी के तलबा ने शिरकत की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने खिताब किया। आखिर में खान के वालिद इकबाल खान ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा, आइए यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों को इतना पुरअमन बनाएं कि मुस्तकबिल में कोई तालिब इल्म मेरे बेटे की तरह हजूम के हमले का शिकार ना हो। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।